the kind of bullying and madness which has captured the imagination of these people purporting to be policemen, that they wear helmets, they're wearing t-shirts and jeans, they trip up a protester who's trying to run away, and when he falls down, four of them get after him with batons and start beating him with lathis. This kind of excessive force, if the constitutional courts don't step in and stem, it's a license to the police to just get away with absolutely anything because they know they have the sanction of the political masters. It is here, my lords, that we must be accountable. दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। If the court does not step in, police get a license to do anything under sanction of political master. जो कल सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ, वो दिल्ली हाई कोर्ट में हो गया, वो भी इस वरिष्ठ वकील। आपके स्क्रीन पर तस्वीर है। इस वकील ने कल दिल्ली हाई कोर्ट में जो कर दिखाया जजेस के आगे, उसको दिल से सलाम। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने, आप जानते हैं कि कल सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया, मामले को, मैटर को सुनने से ही इनकार कर दिया। कहा कि डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट माय टाइम, यह कहते हुए वकीलों को भगा दिया। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में एक वकील ने वो कर दिखाया जिसके लिए उन्हें, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और उनका वो बयान जो उन्होंने कहा है, वो उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में वकील ने दिल्ली पुलिस को एक्सपोज कर दिया है। 2 जजेस की बेंच थी जो देखते रह गए, जजेस देखते रह गए। नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर आवाज उठा रहे देश के जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, युवा छात्र है, उन पर दिल्ली पुलिस की बर्बरता का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत जो है उसमें से एक, सुप्रीम कोर्ट में तो यह मामला पहुंचा था जिसे खारिज कर दिया गया, तो दिल्ली हाईकोर्ट के चौखट पर पहुंचा। लेकिन अदालत के अंदर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने जो कुछ भी कहा है उसकी तारीफ की जा रही है। दरअसल गोपाल शंकर नारायण ने दिल्ली पुलिस और सरकार के रवैये की बखिया उधेड़ते हुए हाईकोर्ट में कहा कि अगर इस मोड़ पर अदालत इंटरवीन नहीं किया, अगर अदालत हस्तक्षेप नहीं करती है, तो पुलिस को अपने राजनीतिक आकाओं की शाह पर कुछ भी करने का लाइसेंस मिल जाएगा। यानी अगर कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा तो इसे माना जाएगा कि राजनीतिक आकाओं के इशारे पर कोर्ट उसे लाइसेंस दे रहा है कि वो कुछ भी करे। Second, you will have enough and sufficient water cannons. In Ramlila, they did not, and the court frowned upon that. You will have enough water cannons as the first step. Here they had one water cannon, which from what I understand was not deployed at all. Tear gas will be the last option and you will not deploy it. They threw it at mothers, wives, small children. There are men standing there with 3-year-old children on their shoulders. Photos and videos will show you that. Tear gas was thrown at them. Canisters were thrown at them. The further instruction is that when tear gas is thrown, it will be thrown away from the crowd and not at them. The number of injuries that happened were completely and solely because of the actions of the Delhi police, the RAF, and those who claimed to be Delhi police and RAF. The videos will also show your lordships, as has already been mentioned, that there are lathis with nails which are at not one instance of any action. And I'm telling you personally, as an officer of this court, I've seen 110 videos. I sat it till the kind of bullying and madness which has captured the imagination of these people purporting to be policemen, that they wear helmets, they're wearing t-shirts and jeans, they trip up a protester who's trying to run away. And when he falls down, 4 of them get after him with batons and start beating him with lathis. This kind of excessive force, if the constitutional courts don't step in and stem, it's a license to the police to just get away with absolutely anything because they know they have the sanction of the political masters. It is here, my lords, that we must be accountable. And we need to have them explain their actions, and which is why our prayers include that apart from an SIT, an FIR against these so-called police officers and administrative disciplinary action taken against them, we need to have a judicial inquiry as well. As far as the preservation of records, I think we have enough and more records in any event. There are multiple. Today, every single human being who's walking around with a cell phone is a journalist. There is enough and more video proof. There is also, and this one is unverified, so I'm putting a caveat on it. जी हाँ दोस्तों, हाईकोर्ट के मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को
दिल्ली हाईकोर्ट को नोटिस जारी करना पड़ गया। गोपाल शंकर नारायण ने जो कुछ भी कहा है, उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट को भी दिल्ली पुलिस और सरकार को नोटिस जारी करते हुए यह कहना पड़ गया कि अगली सुनवाई तक दिल्ली पुलिस ने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, किसके इशारे पर किया, किसका ऑर्डर इस पर था, ये सब कुछ डिटेल में कोर्ट के आगे बतलाना होगा दिल्ली पुलिस को। और घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, रिकॉर्डिंग, पीसीआर लॉग्स को सुरक्षित रखने के कड़े निर्देश दिए गए, ताकि आप अगली सुनवाई में ये ना कह सके कि ये सब तो अब है नहीं, ये रिकॉर्ड के बाहर है, रिकॉर्ड हुआ नहीं। ये सब नहीं, आपको सभी रिकॉर्ड्स को बकायदा सुरक्षित रखने हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि दिल्ली हाईकोर्ट में हुई इस ऐतिहासिक सुनवाई, जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई, उस ऐतिहासिक सुनवाई और वकीलों की तीखी दलीलों पर हमारी ये रिपोर्ट क्या कहती है। दरअसल 20 जुलाई को संसद चलो मार्च के दौरान नीट के पेपर लीक के खिलाफ जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन स्टूडेंट्स कर रहे थे, दिल्ली पुलिस ने बेहिसाब बल प्रयोग करते हुए उनके खिलाफ किस तरीके से बर्बरता जो है दिखाई, किस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हुई, किस तरीके से लाठी से बच्चों को मारा गया, किस तरीके से टीयर गैस छोड़ती हुई दिल्ली पुलिस नजर आई, ये सबने देखा। अब इसके खिलाफ मामला पहले सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर कह दिया गया कि डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट माय टाइम। और इसके बाद ये मामला मतलब पीआईएल के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा, और जैसे ही मामला पहुंचा तो तत्काल सुनवाई भी हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन, गोपाल शंकर नारायण और विकास सिंह ने अदालत के सामने रखा कि जंतर मंतर पर 20 दिनों से डॉक्टर, स्टूडेंट्स, आम नागरिक शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, लेकिन 20 जुलाई को पुलिस ने बिना किसी चेतावनी या अनाउंसमेंट के स्टूडेंट्स पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। पुलिस ने खूब लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले दागे, जो सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 यानी अभिव्यक्ति की आजादी और जीने के अधिकार का खिलाफ है, जीने के अधिकार जो है उसका हनन करता है। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने करीब 130 वेरीफाइड वीडियो का हवाला देते हुए पुलिसिया दमन की पोल खोल दी। आपको याद होगा जब यही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जो एडवोकेट थे वो वीडियो दिखाना चाह रहे थे, तो साफ तौर पर जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कह दिया था कि हमको वीडियो देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जजों के आगे 130 वेरीफाइड वीडियो रखा गया और उसका हवाला देते हुए पुलिसिया दमन की पोल खुल गई। उन्होंने कोर्ट में, मतलब शंकर नारायण ने कोर्ट में बताया कि प्रदर्शनकारियों पर हमला करने वाले कई लोग ना तो पुलिस यूनिफॉर्म में थे, ना ही उनके पास कोई बैज था। अदालत में एक सनसनीखेज वीडियो का जिक्र करते हुए गोपाल शंकर नारायण ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप सबसे पहले। Second, you will have enough and sufficient water cannons. In Ramlila, they did not, and the court frowned upon that. You will have enough water cannons as the first step. Here they had one water cannon, which from what I understand was not deployed at all. Tear gas will be the last option and you will not deploy it. They threw it at mothers, wives, small children. There are men standing there with 3-year-old children on their shoulders. Photos and videos will show you that. Tear gas was thrown at them. Canisters were thrown at them. The further instruction is that when tear gas is thrown, it will be thrown away from the crowd and not at them. The number of injuries that happened were completely and solely because of the actions of the Delhi police, the RAF, and those who claimed to be Delhi police and RAF. The videos will also show your lordships, as has already been mentioned, that there are lathis with nails which are at not one instance of any action. And I'm telling you personally, as an officer of this court, I've seen 110 videos. I sat it till the kind of bullying and madness which has captured the imagination of these people purporting to be policemen, that they wear helmets, they're wearing t-shirts and jeans, they trip up a protester who's trying to run away. And when he falls down, 4 of them get after him with batons and start beating him with lathis. This kind of excessive force, if the constitutional courts don't step in and stem, it's a license to the police to just get away with absolutely anything because they know they have the sanction of the political masters. It is here, my lords, that we must be accountable. And we need to have them explain their actions, and which is why our prayers include
that apart from an SIT, an FIR against these so-called police officers and administrative disciplinary action taken against them, we need to have a judicial inquiry as well. As far as the preservation of records, I think we have enough and more records in any event. There are multiple. Today, every single human being who's walking around with a cell phone is a journalist. There is enough and more video proof. There is also, and this one is unverified, so I'm putting a caveat on it. दोस्तों वीडियो में साफ दिख रहा है कि एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा एक महिला प्रदर्शनकारी को, मतलब वो कहते हैं कि महिला प्रदर्शनकारी को सरेआम थप्पड़ मार रहे, जो कुछ भी नहीं कर रही थी। हमें अपनी सुरक्षा के लिए तैनात इन वर्दीधारी ठग्स इन यूनिफॉर्म के नाम लेने से डरना नहीं चाहिए। केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसवी राजू ने इन याचिकाओं का कड़ा विरोध किया। एएसजी ने साफ तौर पर कहा कि प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए थे, उन्होंने पथराव किया जिससे कई पुलिसकर्मी जो है घायल हुए और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने इन जनहित याचिकाओं को पब्लिसिटी स्टंट और लाइमलाइट बटोरने की कोशिश करार दिया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं की मांग को स्वीकार करते हुए दिल्ली पुलिस को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि 20 जुलाई की, क्योंकि गोपाल शंकर नारायण ने एक बड़ी अच्छी बात कर दी। उन्होंने कहा कि अगर इस मुद्दे पर, इस मैटर में इस समय अगर कोर्ट इंटरवीन नहीं करता है तो ये मान लिया जाएगा कि कोर्ट पुलिस को कहीं ना कहीं ये इजाजत दे रहा है कि वो कुछ भी करे अपने आकाओं के इशारे पर, जिसका जिक्र मैंने फर्स्ट में ही कर दिया था, वो इंग्लिश जो बयान है। अब दोस्तों, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट को साफ तौर पर कहना पड़ा कि 20 जुलाई की घटना से जुड़े तमाम सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी, पीसीआर लॉग्स और लाठीचार्ज, आंसू गैस का आदेश देने वाली फाइलों को तुरंत रिजर्व किया जाए, तुरंत सुरक्षित किया जाए ताकि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो सके। मामले की अगली सुनवाई जो है वो 11 सितंबर को तय कर दी गई है, जहां दिल्ली पुलिस को इन गंभीर आरोपों का जवाब दाखिल करना होगा, साथ में केंद्र सरकार को भी, यानी होम मिनिस्ट्री को भी, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो सीधा अमित शाह के अंडर आती है, सीधा दिल्ली पुलिस जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि 11 सितंबर को सरकार, सत्ता पक्ष और दिल्ली पुलिस क्या कुछ कहती है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में गोपाल शंकर नारायण ने वो कर दिखाया जो सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं कर पाया, और दिल्ली हाईकोर्ट के जजों ने भी वो कर दिखाया जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी नहीं कर पाए। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर के लिखिएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM जैसे आजाद पत्रकारिता करने वाला जो प्लेटफॉर्म है उसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।